Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have very special guest, Mr. Neerav Bakaiji, a renowned educator, graphologist, counselor, and motivational speaker with over 2 decades of experience, with a remarkable track record of mentoring over 1.5 lakh students and guiding 35,000 plus parents across India and internationally. Neeravji has dedicated his career to fostering mental well-being and empowering individuals with essential life skills. As the founder of Active Learning Company, his initiatives has transformed countless lives through impactful seminar and workshop tailored for student parents, educators, and corporate professionals. In today's podcast, we will dwell into Neeravji's unique insights on education, mental health, and personal development. He will share his journey and the inspiration behind his acclaimed book, The Eighth Seal, The Eighth Color of Life, which explores the profound connection between emotion and color. Join us as we explore his innovative approaches to teaching, parenting, and leadership, and discover how his philosophy of positive living can inspire and motivate us all to achieve our dream. Very warm welcome, नीरव जी। आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। Namaste, Yogiram ji. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Starting the podcast with the first question, please tell us about your journey into education and counseling. So, let me be honest, Yogiram ji. I was not a good academic student, and just briefing up, there were many struggles in my childhood with respect to my health, with respect to finances, and because of all these reasons, somewhere my friend circle was not bigger, or you can say better than others, and I have also faced challenges with respect to teachers who were never keen to solve my doubts because of my background and because of my academic thing. So somewhere when teacher never used to solve my doubts or used to ignore me, that time I used to think कि अगर मैं टीचर बनेगा ना तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं टीचर होता ना तो शायद मेरे जैसे बच्चे को ऐसा हेल्प करता। तो तभी से इट वाज अ थॉट कि आई वांट टू बिकम अ टीचर। देन इनटू कॉलेज लाइफ आई गॉट अ वेरी गुड सर्कल जिन्होंने मुझे बहुत मदद किया अच्छे तरीके से to dwell into academic. And then after completion of my qualification and everything, I actually became an official teacher. And जो childhood का dream था कि yes, I want to do something for my kids who are not academically good. So that's the reason how I entered into academic and completed my 2 decades into education. Great. So moving to the next question, what motivated you to become a motivational speaker and counselor? Okay. See, through years of teaching, what happens that I came to know that teaching is not only enough. And again, I will be very honest. I was not a very good teacher in the start. है ना, कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, बच्चे समझ नहीं रहे। सो समवेयर आई लर्नड ग्राफोलॉजी, दैट इज हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। तो उससे मुझे पता चलने लगा कि भाई ये बच्चा जो क्लास में डाउट नहीं पूछ रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, सो देयर इज समथिंग गोइंग इनटू हिज माइंड, देयर इज सम प्रॉब्लम। सो आई स्टार्टेड एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम्स। और जब मैं बच्चों के डाउट, बच्चों के पर्सनल प्रॉब्लम को एड्रेस करके सॉल्व करना शुरू किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का ध्यान आना शुरू हो गया। एंड आई स्टार्टेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स समवेयर रिक्वायर्ड इवन टू देयर पेरेंट्स एंड फैमिलीज। सो स्लोली एंड स्टेडीली वाइल टीचिंग मैं काउंसलिंग करते गया। और फिर मुझे कुछ पेरेंट्स का आया कि सर आप मेरी बहन को, आप मेरे बड़े बेटे को काउंसिल कीजिए, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे। कुछ लोगों ने मुझे ऑफर किया उनके बिजनेस में, उनके मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज को काउंसिल करना। और धीरे 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 फिर ये काउंसलिंग हॉराइजन बढ़ते गया। एंड देन आई बिकेम अ काउंसलर एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर। Great. Moving more into teaching and impacts on student, how do you approach teaching to make it more engaging for student? और सी योगीराम जी, मेरे लिए जैसे मैंने बताया था, मैं खुद एक अच्छा एकेडमिक स्टूडेंट नहीं था। तो एज अ टीचर it's not me, but it is a responsibility of every teacher to understand that every student is unique. कोई स्टूडेंट स्कॉलर नहीं होता, कोई स्टूडेंट डल नहीं होता है। टीचर का काम होता है उसको स्कॉलर बनाना। आई अंडरस्टैंड कि
each and every student or each and every person living into our country is a national asset. तो मेरा गोल एक ही था कि मेरे बच्चों को मार्क्स के अलावा एक हेल्दी हैप्पी लाइफ बनाने में मैं कहाँ उनको मदद कर सकता हूँ. तो whenever I used to approach my students, मैं सिर्फ उनका मार्क्स नहीं देखता था, मैं ये देखता था आज से 15 साल या 20 साल बाद ये बच्चा एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा या आर्मी में जाएगा या जो भी कुछ है. सो दैट इज समवेयर आई विल से कि आई डू नॉट फिट इनटू दिस कमर्शियल एजुकेशन इंडस्ट्री, बट यस आई कैन से आई एम अ गुड टीचर फॉर lakhs of future businessmen, doctors, engineers, and army people. So this is how my approach is, that every student is unique और उसको स्कॉलर डल नहीं लेबल करना चाहिए, उसको एक नेशनल एसेट की तरह तैयार करना चाहिए. Right. Sir, moving to the next question, please share an impactful moment from your teaching career. सर कुछ सालों पहले ना मेरा एक स्टूडेंट था एंड वो स्टूडेंट ना एक्चुअली मेरी जैसा था, जो अकेडमिकली बहुत वीक था एंड अकेडमिकली वीक होने के साथ ना वो बहुत मिसबिहेव और इनडिसिप्लिन भी होता था, जिसकी वजह से एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता था एंड मैं एक्चुअली उस पर चिल्लाता भी था. क्लास में बाहर निकलना नहीं, बट आई यूज्ड टू गेट वेरी अनॉयड विद दैट पर्सन. सो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, आई केम टू नो दैट दिस पर्सन, उसकी मदर को कैंसर है एंड एब्सोल्युटली हैविंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. सो लेटर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम थ्रू ग्राफोलॉजी, ये पता चलता है ग्राफोलॉजी में कि बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है. सो आई स्टार्टेड सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम कि भाई ठीक है, एक मम्मी को कुछ प्रॉब्लम है, फादर को फाइनेंशियल है, इट्स नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज एवरीथिंग. So slowly and steadily that child started responding positively. और जो मस्ती करने वाला था, जो लोगों को परेशान करने वाला था, जो कैरेक्टर इश्यू वाला भी उसके अंदर था, वो सॉल्व होते गया and that child actually came with a very flying colors. And let me tell you, Yogi Ram ji, I'm very happy to tell you this, my student जो एक्चुअली बहुत वीक था, इनडिसिप्लिन था, ये आज एक सर्जन बन चुका है. एंड मतलब मुझे अच्छा ये लगता है कि आज वो एक मेरा स्टूडेंट ना होके मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड हो चुका है. हम लोग हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार मिलते हैं एंड मुझे समझ में आता है कि जब वो मेरे पास आया था, एक्चुअली उसने डॉक्टर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, जस्ट एक हाईली इनडिसिप्लिन था, बट नाउ हिज लाइफ इज वेरी वेरी गुड एंड लेट मी टेल यू, ही इज अ कैंसर सर्जन सर. तो एक इसके अंदर एक विजन था, yes, अभी मुझे कुछ कर. So I am happy कि somewhere because of my that step of understanding my student, एक बच्चे की लाइफ बहुत इम्प्रूव किया और आज उसके अच्छे सर्जन बनने से बहुत लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो रही है. सो नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव आ गया, जस्ट एक टीचर की पार्टिसिपेशन. थैंक यू सर. More into parental guidance and support. How do you guide parents in supporting their children's education? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आज के टाइम पे भी पेरेंट्स neglect the responsibility. Yes, if it is, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीथिंग विल बी हैंडल बाय दैट, बट यस उनका भी एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट रोल है. तो सर प्लीज इसके बारे में डिटेल में बताइए. यस योगी राम जी, most of the parents consider nowadays that once we have given the fees into school or any of the coaching classes, now it's a responsibility of the teacher to do everything. So let me be again honest and blunt. एक माली जो होता है, गार्डनर जो रहता है ना, वो बीज को पानी दे सकता है, वो उसको खाद दे सकता है, वो कोई एनिमल उसको खा ना जाए इसलिए उसका ध्यान रख सकता, बट दैट सीड रिक्वायर्स सॉइल. सो पेरेंट्स and positive environment from their home is like a soil. So it's very important that every student should have, every parent should be like that positive soil जहां वो बच्चा अच्छे से grow कर सके. So I always guide, I always counsel my students saying that हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के बारे में ना देखें. यस, डेफिनेटली एडमिशन इनटू गुड कॉलेज के लिए मार्क्स जरूरी है, बट वो बच्चे के माइंड के हिसाब से सोचिए. जो 3 इडियट्स मूवी में भी जो बोला गया है, भाई आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप अच्छे नॉलेज के पीछे भागो. तो डेफिनेटली ये मेरे पेरेंट्स को मैं बताता हूँ कि एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे आपका बच्चा अच्छा मार्क्स क्या, एक अच्छा इंसान भी बन पाएगा. So this is, I always counsel my students, parents in this. Great. Sir, moving to the next question, and yes, ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करेगा.
what is the most common concern you hear from parents? See, I would say that when I started teaching in 2004, so parents are concerned about their, मतलब मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, where the parents are concerned about child's knowledge, discipline, I would say punctuality, and whether they are learning values like cooperation and empathy. Great. But sorry to tell you, today the concerns have shifted dramatically. Their parents now worry about their child's health in the digital age, exposure to inappropriate content, immature relationship, and the pressure to score high marks, how to deal with the peer pressure in the ultra competitive world. So the challenge today is balancing academic success and mental well-being and navigating the overwhelming influence of the internet. Now, I would say it's a new era of both parents and educators must adapt the child through it. So nowadays internet की वजह से कैसे ना knowledge easily available है, तो टीचर को अपने आप को वैसा थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है जहाँ बच्चे को वो रिक्वायरमेंट उनकी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए. सो यस, द मेजर पेरेंट्स का जो कंसर्न है डिजिटल जो डिटॉक्स हमें होना चाहिए वो ज्यादा होता है. एंड उसके लिए ज्यादा आई वुड से पेरेंट्स को टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है. अगर हम बच्चे को राइट एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, ठीक है, वो मोबाइल यूज कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा आदत डालिए, अच्छी यूट्यूब चैनल, नॉलेजेबल चैनल देखे, एंड धीरे 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 बच्चा वो डिजिटल डिटॉक्स. सो दैट इज लाइक पेरेंट्स का हम उनको हेल्प कर सकते हैं. Great, great. Sir, moving to the corporate training and development, how do you structure your corporate training programs? See, basically, my corporate training programs focus on the three things, that is mindset, skill set, and very important tool set. तो हम एक कोई भी बिजनेस की बात करें ना, उस पर्सन की, उस बिजनेस ओनर का माइंड सेट क्या है, उसकी खुद की स्किल्स क्या है, और वो बेसिकली कितनी चीजों को यूज करके आगे जाना चाहता है और आगे लेके जाना चाहता है, ये बहुत जरूरी है. सिर्फ मैं पैसा कमाऊं तो वो बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा. हमें सबके बारे में जब सोचेंगे तो ही वो मैटर करेगा. So with mindset, skill set, and tool set with a strong emphasis on emotional balance. See, we are human. I understand कि हमें कभी कभी इमोशंस को बाजू में रखना है, बट सर आप सोचिए अगर हमारे में से इमोशंस निकल जाएंगे तो हम मशीन बन जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरीथिंग में एक इमोशनल बैलेंस होना जरूरी. सो आई बिल्ड कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, इमोशनल इंटेलिजेंस while equipping participants with practical skills. Definitely वो जरूर है, and of course with the leadership and communications. तो यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि जो ग्राफोलॉजी है, जो हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस है, इससे हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि वो पर्सन को कैसे क्या सीखना है और उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जो आप बिजनेसमैन नहीं, आप कोई भी फील्ड में वो अप्लाई कर सकते. सो इन टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड आई वुड से कि देयर इज एक स्ट्रेस हो जाता है, एंड टू कॉम्बैट द स्ट्रेस देयर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हम सिखाते हैं, एंड वर्क लाइक हार्मनी, हाउ टू नॉट जस्ट सेट द गोल बट वो गोल के पीछे आपका पर्पस क्या है, ये बहुत जरूरी हो जाता है. एंड टू क्रिएट इमोशनली अवेयर प्रोफेशनल्स हु थ्राइव in both career and life and aligning any mission. So वही मैंने जो मेरा आपने बताया स्टार्टिंग में कि मेरा बुक का वही एक मिशन है जहां हमें सारे कमर्शियल को लेके, बिजनेस को लेके, हमारे इमोशंस को भी कैसे बैलेंस करना है. So that is basically I structure my corporate training programs with skill set, mindset and tool set, but very important balancing the emotions as well. Moving more into skills, what are the key skills you focus on for corporate professionals? See, I would say that I focus, again, I will use the three skills for corporate professionals. जैसे कि आज हम सुनते हैं कि ये पर्सन बीमार हो गया, हार्ट अटैक आ गया, या कुछ केस में हमने सुना कि वो लोग उनका डेथ भी हो गया इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली स्ट्रेस एंड प्रेशर. सो for corporate professional, emotional intelligence, adaptability and effective communication होना जरूरी है. मुझे स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस है, बट अगर हम हमारे फ्रेंड्स को या किसी को ये बात बता भी देते हैं तो
थोड़ा बहुत या ज्यादा असर करता है हमारे माइंड पे, रिलीफ करने में, स्ट्रेस फ्री होने में। एंड कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन वी गो बियॉन्ड स्किल्स, तो आई एम्फोसाइज मेंटेनिंग गुड इंटेंशंस, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी एंड पॉजिटिव कर्मा। तो जैसे कि हम सीनियर मैनेजर है और सिर्फ एक जूनियर को अनवांटेड वे से ट्रीट कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज टेल माय कमर्शियल प्रोफेशनल्स कि भाई कर्मा वापस आएगा, सब मत करो। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिजल्ट और मनी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म फुलफिलिंग लाइफ फॉर देयर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। वो सीनियर मैनेजर ठीक है, डांट रहा है या कुछ अलग एक्शंस ले रहा है, बट वो आगे जाके उसकी लाइफ में क्या याद करेगा कि मैंने किसको कैसी तकलीफ दी है या किसको कैसे हेल्प किया। सो आई ऑल्सो इंटीग्रेट टूल्स लाइक ग्राफोलॉजी एंड स्पिरिचुअल वेलनेस प्रैक्टिसेस एंड एम्पैथी, बैलेंसिंग एवरीथिंग। सो एक ग्राउंड रीजन पे यही है कि ग्लोबल वर्ल्ड पे ये सारी चीजें अगर इंटीग्रेट की जाएगी तो हाउ वर्ल्ड विल बी ब्यूटीफुल, बहुत एक अलग तरीका हो जाएगा देखने का। Great, 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 great. Sir, moving to the well-being and mental health concern, please share importance of mental health in today's fast-paced world. ओके, मेंटल हेल्थ टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आजकल एक थोड़ा एक ऐसा फैशन जैसा मॉडर्न वर्ड हो गया है। पर लेट मी टेल यू, ये ना कोई ऐसा लग्जरियस या ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये एक नेसेसिटी होता है एक ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग का। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी डॉग को भी स्ट्रेस आ जाता है, उसका भी एक मेंटल हेल्थ होता है और हमें उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। सो इन टूडेज फास्ट पेस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड जो आज हम बोलते हैं, मेंटल हेल्थ इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। एंड वी आर ड्राउनिंग इन अ डिजिटल नॉइस, एंडलेस डेडलाइंस एंड सोशल सोसाइटल प्रेशर्स बहुत सारे हैं, है ना। एग्जाम्पल, भाई शादी नहीं किया तो ना पूरे गांव को ज्यादा चिंता होती है, तो सोसाइटल प्रेशर में हम ज्यादा आ जाते हैं। एंड ऑल वाइल क्रेविंग ह्यूमन कनेक्शंस एंड पर्पसेस, हम कहाँ कहाँ भूल जाते हैं सब स्ट्रेस में कि भाई मैंने ये बिजनेस खोला था या मैंने जो किया था क्यों कर रहा था, हम पर्पस ही भूल जाते हैं, सिर्फ पैसे के पीछे सारा स्ट्रेस खत्म, स्ट्रेस ले लेते हैं। सो मेंटल हेल्थ इज बेसिकली एंकर, एंड वो ना हमें नेविगेट करता है ताकि हम केओस की तरह ना जाए। सो अगर मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा है ना, तो मेरा जो शिप है ना वो बहुत अच्छे से जाएगा। वो एक एंकर का काम, वो एक गाड़ी में ब्रेक का काम करता है, गाड़ी ड्राइव करने में आपको बहुत सेफ फील करें। सो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड निग्लेक्टिंग इट फ्यूल्स। मेंटल हेल्थ अगर एक गाड़ी है, एक ब्रेक है, तो उसके फ्यूल्स मैग्नेटिक, आई वुड से कि निग्लेक्टिंग इट फ्यूल्स बर्न आउट द fractured relationships, and but here the power we hold, like mindfulness, boundaries and self awareness, to rebuild the balance, not only financially but of course living life blissfully. So prioritizing mental health isn't a weakness, it's a wisdom, and in a world obsessed with hustle, इट्स इज द ब्रेवेस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आज अगर मैं मेरे मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहा हूँ तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये क्या सोच रहा है। आई शुड बी वेरी प्राउड कि yes, I'm having some problem, I want to discuss with. So we should always take a first step to act wisely for mental health. Moving to the connected question, what strategies do you employ to promote mental well-being? Okay, this strategy I always share with my students, parents, friends, everyone. सबसे पहले तो never complain, never gossip, flow with the let go, do your religious activities, very important, talk to your friends and keep your ego aside. Because कभी कभी आपके अंदर जो ईगो होता है ना, उसकी वजह से भी आपको खुद का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आ, मुझे आपसे बात करना है भाई योगी राम जी, ये प्रॉब्लम है, बट मैं क्यों बात करूं योगी राम जी से, वो ईगो की वजह से शायद मेंटल हेल्थ सॉल्व नहीं हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बी रियल, ओरिजिनल, एवरीवेयर, टू एवरीवन। ओरिजिनल रहेंगे तो शायद आपको कभी एक आध दो जन आपको रेजोनेट नहीं करेंगे, बट ठीक है, आप तो स्ट्रेस में नहीं रहोगे कि भाई मुझे कितना आर्टिफिशियल होना है। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल माय लिसनर्स। Great, great, great. Sir, you talked about graphology, handwriting and signature analysis. So how can handwriting and signature analysis benefit individuals? Sir, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सर प्लीज बताइए। योगी राम जी, लाइफ हैज 4 layers I can say. See, because of science teacher ना, कुछ चीजें मैं आपको साइंटिफिक बताना चाहूंगा। जैसे कि some things are like which everyone knows. आप कितने बजे घर आ रहे हो, आ जा रहे हो, everyone knows. Some things are like only we know.
like मेरे बैंक में कितना पैसा है, हाउ मच गोल्ड आई हैव. Some things are like which others know about you. Example, योर मदर नो कि बाबा इसको गुस्सा आया तो कौन से लेवल पे इसको हमें शांत कराना. एंड द फोर्थ थिंग इज विच नो वन नोज अबाउट अस इंक्लूडिंग अस. ये एमबीए में सिखाया जाता है, इसको जोहारी विंडो बोला जाता है. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लाइंड पार्ट, जहां किसी को पता नहीं होता है. तो ग्राफोलॉजी, आई वुड से ग्राफोलॉजी इज अ 400-year old science which actually unveils the hidden patterns into our handwriting, which offer deep insights into our mind, emotions, and behaviors. So it helps us to decode and resolve mental, financial, relationship challenges. And very important, unlocking the personal growth and transformation towards positivity. So graphology is a very, very important and beautiful tool which we should use. जो मुझे टीचिंग में बहुत हेल्प किया है. सर इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. प्लीज शेयर इंटरेस्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम योर एनालिसिस एक्सपीरियंस. आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा अजीब था. सी क्या होता है ना, जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं या जिसको इनका नॉलेज होता है, कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि हम हमारे हैंडराइटिंग मैनिपुलेट किए कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है. हमारा जो कैरेक्टर है ये हमेशा रहेगा ही रहेगा. सो आई वर्क विद मेनी कंपनीज एज अ कंसल्टेंट, जो उनके कैंडिडेट्स के, एम्प्लॉयज के हैंडराइटिंग देते हैं, और मेरा काम होता है उनको सही गाइडेंस देना whether that employees fit into that company or not. So एक कंपनी थी दुबई में जहां they want to reduce their staff because of some reason. उनको एक बस एक improved version चाहिए था. तो मुझे आए अराउंड there were some numbers of samples आए मेरे पास, और उसमें एक सैंपल ऐसा था जहाँ एक पर्सन ने ना एक बड़ा दुखी भरा जिंदगी लिखा. जहां हम ग्राफोलॉजी में रीड नहीं करते कंटेंट, हम लोग कैरेक्टर्स देखते, ट्रेट्स देखते हैं. तो उसमें मैं बोलूंगा जानबूझ के ऐसा लिखा था, भाई मेरी मम्मी बीमार है, मेरी वाइफ से ये प्रॉब्लम है, बच्चा ये है. एकदम ऐसा ना, ऐसा मतलब एकदम ऐसा वो स्वर्ग वाला फीलिंग आ रहा है, राजेश खन्ना जैसा, एकदम दुखी वाला. सो पता चला कि भाई ये इतना दुख कैसे हो सकता है, मतलब. तो मैंने जब उनके एचआर को, उनके सीनियर मैनेजमेंट को पूछा, पता चला कि भाई ये तो सिंगल है, उनकी तो वाइफ ही नहीं है, और बाकी सब बैकग्राउंड भी चेक किया तो राइट नहीं था. सो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में जहां उनको पता था कि मुझे निकाला जा सकता है कंपनी में से. ही वॉज नोइंग कि ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और फिर मुझे पता चला उसका कुछ कैरेक्टर इश्यूज भी था. सो दिस इज हाउ मैनिपुलेशंस लोग कौन से लेवल पे करते हैं. बट यस, आई थैंक्स टू माय टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा ग्राफोलॉजी पढ़ाया, और ये चीज हम फाइंड आउट कर पाते हैं. तो बच्चों के अंदर तो यस, वो लोग मैनिपुलेट नहीं करते, बट यस बड़े लोग जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है गूगल से, वो लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. तो ये मेरे लिए एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस था. ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था. सर, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट also, the 8th CL, the 8th color of life. Sir, what inspired you to write this consolidated version of your experience, your knowledge? Sir, इसके बारे में प्लीज बताइए. See, being a physics teacher, मैं एक बार बच्चों का ना वो एक न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट सिखा रहा था कि भाई उसमें 7 कलर होते हैं, और जब आप उसको स्पीड में घुमाते हैं ना तो व्हाइट हो जाता है. और तो मैंने देखा कि जैसे वो स्लो घूम रहा है, उसका कलर डार्क हो गया, चेंज हो गया, और जब मैं रिक्वायर्ड स्पीड में घुमा रहा हूँ तो वो व्हाइट हो गया. तभी मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि भाई वो जो कलर है, व्हाइट हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, डार्क हो रहा है ना, ये मेरे स्पीड की वजह से है, मैं जो उसको स्पीड दे रहा हूं. तभी मुझे समझ में आया, तभी मैंने एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया कि ये 7 कलर के हमारे लाइफ में 7 इमोशंस भी तो होते हैं. डिसकंटेंट हो गया, ईगो हो गया, एंगर हो गया, बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो मैंने मेरी बुक में बताए हैं. तो ये जो इमोशंस है एक्चुअली हमारे पे निर्भर करते हैं कि अगर इस इमोशंस को हमने राइट यूज किया तो ये हमें व्हाइट पॉजिटिविटी देगा. बट अगर हमने इसका राइट यूज, हमने ही खुद राइट यूज नहीं किया, तो हमें ब्लैक नेगेटिविटी दे सकता. सो दिस इज हाउ ये एक छोटे से क्लास के छोटे से एक्सपेरिमेंट से मुझे ये आइडिया आया. एंड आई टुक एक्चुअली समवेयर 9 years टू राइट दिस बुक by just traveling at many places, talking to many people, and yes, of course, scientific and spiritual knowledge मिला के ये पूरा एक बुक बना है.
सो दैट्स अबाउट द एथ कलर ऑफ लाइफ, कि आपकी जिंदगी में अगर हमें आठवां कलर दैट इज वाइट पॉजिटिविटी चाहिए, तो इमोशंस को कैसे बैलेंस और कंट्रोल करना जरूरी है हमारे साइड से। हम किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट एथ कलर ऑफ लाइफ। ग्रेट ग्रेट सर। सर इसी कंटेक्स्ट से बुक के रिलेटेड एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे मैं। हाउ डू यू रिलेट इमोशन टू अ कलर, स्पेसिफिक कलर इन योर बुक? लेट मी टेल यू, लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ रेड कलर जो बहुत कॉमन है। रेड कलर योगी राम जी गुस्सा भी दर्शाता है, एंगर, एज वेल एज लव भी दर्शाता है, प्यार। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बात करूं, लेट्स से एक बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, इनडिसिप्लिन है, मैं बोलूं वो आग मांग रहा है, क्या हम तभी प्यार से बात करना चाहिए या हमेशा उस बच्चे से प्यार से ही बात करना चाहिए? तो आई वुड से नो। कभी कभी हमें सख्त भी होना पड़ता है। मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। एक को बच्चे को बताना पड़ता है कि बेटा ये गलत है, और सेम वे में बच्चे को लग गया और हम फिर उस पर चिल्लाते हैं कि बेटा तेरे को कितनी बार बोला है, तू क्यों जम कर रहा है, और फिर हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं। बट नो, उसको उस प्यार की जरूरत। देखिए लाल कलर दोनों में आ गया, गुस्सा भी है और प्यार भी है, बट हमने गलत जगह प्यार दिखा दिया और गलत जगह गुस्सा दिखा दिया। तो इस बुक में हमने वही बताने की कोशिश की है कि हर एक कलर के दो पहलू होते हैं, हर एक इमोशंस के दो पहलू होते हैं, उसे कैसे कहाँ अच्छी तरीके से यूज करने से हम उसको वाइट पॉजिटिविटी ला सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट एक कलर के बारे में मैंने आपको एक बहुत ब्रीफ में बताया। Great, great. That was really great. That was really good to have aspects of both. It is just like two sides of a coin, and both are very essential and very important. Sir, moving to your more personal life, what is your personal philosophy of life and success? Viram ji, I strongly believe, and I always tell to my students, if God has decided to give us birth of human and not of any animal or insect, so it's 100% sure that life is having some purpose. So life without purpose is just a mere existence. हम लोग क्या कर रहे हैं अगर हमारी लाइफ में पर्पस ही नहीं है? और पर्पस गिव्स द मीनिंग, एंड अ मीनिंगफुल लाइफ गिव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट फॉर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई चलो हमें जाना है पूना, तो शायद आप गाड़ी अच्छे से ड्राइव करेंगे, कभी चाय पीने के लिए रुक जाएंगे, बट मैं आपको बोलूं चलो जाते हैं, अरे भाई कहाँ जाना है, आप खुद कंफ्यूज रहोगे। सो पर्पस होना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग, जो आपने मुझे सक्सेस के बारे में पूछा, ट्रू सक्सेस इज व्हेन आवर प्रेजेंस स्प्रेड्स हैप्पीनेस। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पैसा हाथ का मैल एंड एवरीथिंग, नो, मनी इज इम्पोर्टेंट, बट ट्रू सक्सेस मेरे लिए मायने रखता है कि मेरे प्रेजेंस से अगर आजू बाजू का वातावरण हैप्पी हो जाता है, इट्स माई ट्रू सक्सेस। And very important, no matter the circumstances are there, we stay connected to our faith, our loved ones and values. कितना भी पैसा आ जाए, कितने भी बड़े हो जाए, बट जब हम हमारे भगवान को, हमारे अपनों को और हमारी वैल्यूज को नहीं भूलते, तो वो एक अच्छा और ट्रू सक्सेस माना जाता है। Sir, moving to the most commonly asked question and yet most important, how do you maintain balance between personal and professional life? See, balance isn't just about a time, घर पे अलग, कंपनी में अलग, it's not about time and place, it's all about priorities. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मेरे घर में मेरी जरूरत ज्यादा है, तो यस, फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं, आई बैलेंस अ वर्क लाइफ प्रेशर, मैं घर छोड़ के काम करना चला जाऊंगा। नो, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। कभी कभी ऑफिस में आपकी ज्यादा जरूरत होती है, तो मैं घर वाले को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई आज लेट आऊंगा या नहीं होगा तो चलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट how you decide and maintain your priorities. And I obviously I set up boundaries, I stay into present tense and embrace the mindfulness. So passion drives me success, but I always believe passion इतना भी नहीं होना चाहिए, overdone नहीं होना चाहिए कि passion poison में convert हो जाए. So work hard, and I always say that don't neglect your personal joys. आज लगता है कि भाई मुझे पानी पूरी खा लेना है तो खा लीजिए, बट पर्सनल जॉयस को ज्यादा सैक्रिफाइस मत कीजिए। डिस्कनेक्ट टू रिचार्ज, बिकॉज रियल सक्सेस मीन्स नॉट थ्राइविंग और नॉट जस्ट अचीविंग, बट यस, लिविंग योर लाइफ
in all the positive and good way. Sir, moving to the future plans and collaboration, what kind of collaboration you are looking forward to? कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूं तो यस, जो मैंने बताया कि 20 years of teaching experience and counseling and spending hours of research talking to many people at many places, मैंने ये बुक लिखा है द एट सेल द एट कलर ऑफ लाइफ, जहाँ सारे इमोशनल को कैसे बैलेंस करना है. तो यस, मैं चाहूंगा कि आपकी लिसनर्स ये बुक रीड करें एंड कैसे वो उसकी लाइफ में इमोशन धीरे धीरे बैलेंस होके उनको व्हाइट कलर पॉजिटिविटी मिलेगा, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी. एंड जैसे और एक मैंने बताया, जो स्टार्टिंग में मैंने ग्राफोलॉजी के बारे में बताया था, सो इफ एनीवन वांट टू लर्न अबाउट ग्राफोलॉजी, नो अबाउट ग्राफोलॉजी, definitely they are most welcome, and I'll be happy to teach them and to actually give all kind of guidance for happy healthy life. सर, इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा. What are your Please. future plans for expanding your seminars and very specifically the workshop that you are talking about? Yes. See, I would say मैंने लास्ट अराउंड 10 साल से मैं काफी सेमिनार्स ले चुका हूँ विद रिस्पेक्ट टू ये HCL ऑल्सो. अभी यस, डेफिनेटली एक स्पेसिफिक नाम ऐसा नहीं था. विद रिस्पेक्ट टू पेरेंटिंग, स्टूडेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, काफी सारे सेमिनार्स में ले रहा हूँ. But now I am very focused to develop a 3 days workshop and a long term training program with respect to focused to HCL. जहां मैंने जैसे बताया, आपने जो बताया मेंटल हेल्थ के बारे में, कि इट्स नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी. जहां मैं उनको ये बहुत इजी तरीके से, एक बहुत इकोनॉमिकल तरीके से मैं उनको 3 डे वर्कशॉप में मैंने कन्वर्ट किया है और मैं उनको सिखाना चाहूंगा. सो माई फोकस इज ऑल अबाउट वर्कशॉप, 3 days वर्कशॉप जो वीकेंड में रहेगा, एंड अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ उनके लाइफ में हर एक चीजें इमोशन बैलेंस करते करते सॉल्व की जाएगी. Sir, moving back again to the personal question, reflecting and advices. Looking back, what advice would you give to your younger self? आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन. बहुत गलतियां की मैंने. तो एक चीज जो मैं अपने आप को बोलना चाहूंगा कि डोंट ड्रिंक पॉइजन फॉर अदर्स रॉन्ग बिहेवियर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल एंगर एंड हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट गॉड, कर्मा एंड ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन अनकंडीशनल. सो भरोसा रखिए, आपके साथ कोई है, सब ठीक हो जाए. तो जो मैं अपने आप को यस बिलीव करना मैंने चालू किया है, and yes, I'm getting a very good positivity and success day by day. Great. आपके पॉडकास्ट पे आना भी, ये भी मेरा एक सक्सेस है. So thank you so much, Yogi Ram ji. Pleasure is all mine and my teams and viewers. Sir, moving to the next and most important question also, what advice would you give to someone inspiring to follow in your footsteps? Yes, I will brief this particular question. Like सबसे पहला is important, set targets. जैसे मैंने बताया ना कि जाना है, कहाँ जाना है, पूना जाना है, मुंबई जाना है. Set targets, define boundaries, and prioritize wisely. Plan with purpose, execute with silence, and I would say let your result make noise. So just काम कीजिए. और वो जो श्री कृष्ण जी ने भी बोला है, मतलब कर्म पे ध्यान दीजिए, फल डेफिनेटली मिले. जब हम फल पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं. जस्ट डू योर वर्क, दैट्स इट. सर, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन एंड मूविंग टू एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू लीव टू अवर लिसनर्स? योगी राम के लिसनर्स हैं, एंड आपको जो लोग अभी सुन पा रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, सर उनके लिए. I would say that nothing in this world is truly free, Yogi Ram, except your parents' love. कुछ भी आपको चाहिए तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी. So nothing is in this world is truly free except the pure and unconditional love of your parents. And I would say there is only one thing is constant in the life, is the change. Right. So temporary is the only permanent. Embrace it, evolve it, and make every moment count. And keep smiling. You are breathing. That's also big success. So just enjoy whatever moment God, universe, energy has given us.
ग्रेट सर। सर इट वाज रियली प्लेजर टू टॉक टू यू। एंड मेरे ख्याल से जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको ये एक चीज रहेगी कि यस देयर आर मेनी टेक अवेज, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट about your books and how you have connected that thing into implementing and getting that fruitfulness of the life. Sir, moving to the last question of this podcast, and yet most important one, how our listeners, how people who are viewing this video, they can connect with you and learn more about your work, your workshop, and other things also. They can connect me on the Instagram. My ID is Active Learning Company, and even Nirav Pakai, NIREV PAKI. ठीक। मैं योगीराम के लिसनर्स को एक बार फिर बताना चाहूंगा, टुडे वी वर टॉकिंग टू मिस्टर नीरव पकाई जी। He is a renowned educator, graphologist, counselor, and motivational speaker with over 2 decades of experience. So you can contact, you can get the guidance in context of your academics, in context of your life, in context of how to mindfulness से आप अपनी life कैसे जी सकते हैं, and the most important, how you can leverage the consolidated version of tips, information, tricks in his book, that is the 8th CL, right? And बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. It was Thank really you. pleasure of my team. It was really pleasure of Yogiram. आप आए and you have shared many things. And thanks for your precious time, sir. Yes, it's my honor. And last thing I would say, life is beautiful. Thank you, Yogi.